فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنوں، رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہر شہر یا گھر میں جانے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ہم دروازے سے اندر جاتے ہیں، تو اگر ہمیں نبی سے ملنا ہے، نبی کے پاس جانا ہے، تو پہلے علی کے پاس جانا ہوگا۔ صلوات علی کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے سلونی سلونی، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ پھر ایک آدمی آیا اور علی سے کہا اے علی یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ علی نے اس کو ٹوک دیا اور کہا یہ کیسا سوال ہے، یہ جان کے تم کیا کرو گے جس کے جاننے سے تمہارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور جس کے نہ جاننے سے تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہے؟ اگر جاننا ہے تو اپنے بیٹے عمر ابن سعد کے مستقبل کے بارے میں جانو، جو میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کرے گا، تاکہ اگر ہو سکے تو تم کچھ اس کی اصلاح کر سکو۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا جو عالم کی قدر سمجھتا تھا، اس نے پوچھا اے علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل امی کدھر ہیں؟ مولا علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا۔ جب ہر طرف دیکھ لیا تب کہا کہ تو ہی جبریل امی ہے، اور پھر جبریل امی غائب ہو گئے اور یہ ثبوت دے دیا کہ علی صحیح کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں کہوں گی مولا علی اگر آپ کو پتا تھا کہ جو آدمی پوچھ رہا ہے سوال وہی جبریل امی ہیں، تو پھر آپ نے ہر طرف دیکھا اور پھر کیوں کہا؟ تو مولا علی کہیں گے میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے باخبر ہوں، تو اس دعوے کو دلیل میں بدلنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے دائیں دنیا کے آخری حصے تک دیکھا، بائیں دنیا کے آخری حصے تک دیکھا، آگے کائنات کی آخری سرحد تک دیکھا، پیچھے آخری سرحد تک دیکھا، زمین کے نیچے آخری زمین تک دیکھا، اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر جہاں شب معراج کو جبریل امین رسول اللہ سے کہا تھا کہ اس کے اوپر جائیں گے تو ہمارے بالوں پر جل جائیں گے، وہاں سے دیکھا۔ مجھے جبریل کہیں نہ دکھے تو میں سمجھ گیا کہ یہی جبریل امی ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ تو ہی جبریل امی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی علی کی عظمت پہ کچھ لوگوں کو یقین نہ آیا اور وہ ایک زندہ جوان لڑکے کو تابوت میں لٹا کر لے آئے اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ آئی تھی اور وہ مکاری کا رونا رو رہی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، مولا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو مولا علی نے ان لوگوں سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا میں سچ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو اس نے کہا ہاں علی پڑھا دیجئے۔ پھر مولا علی نے پھر پوچھا کہ کیا میں سچ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو اس
पढ़ा दीजिए। मौला अली ने तीसरी और आखिरी बार पूछा कि क्या मैं सच में इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूं? वो औरत अभी भी ना समझी और उसने कहा जी अली पढ़ा दीजिए। और फिर मौला अली ने तकबीर शुरू की, अल्लाह अकबर। पीछे कोनियाँ चलने लगी कि देखो अली तो जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। जब नमाज जनाजा ख़त्म हुई और अली जाने लगे तो मौला अली की तौहीन करते हुए पीछे से कुछ लोगों ने कहा, ए अली आप तो बड़ा दावा करते थे कि आप ज़मीन के रास्ते से ज़्यादा आसमान के रास्ते से बाखबर हैं, लेकिन आप ज़मीन के नीचे और आसमान के नीचे क्या देखेंगे जब आप ये नहीं बता पाए कि चादर के नीचे जिंदा है या मुर्दा है। तो अली ने उन लोगों का ये तौहीन वाला अंदाज देखा और अली को जलाल आ गया और मौला अली ने कहा अगर जिंदा है तो उठा लो। मौला अली ने कहा अगर जिंदा है तो उठा लो। जब चादर हटा के देखी गई तो वो लड़का तो मर चुका था, वो तो मुर्दा था, लेकिन उसकी जो माँ थी वो अली के लहजे को देखकर ही समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है और वो अली के कदमों पे पड़ गई और कहा कि मैं अपने बेटे को जिंदा लाई थी, जिंदा ही ले जाऊंगी। तो मैं कहूँगी ए ज़ईफ़ा, अगर तुम जिन लोगों के बहकाने पे यहाँ अपने बेटे को लेकर आई थी, अब जाके उनसे कहो ना मौला अली से क्यों अपने बेटे की ज़िंदगी की गुजारिश कर रही हो। तो वो कहेगी कि मैं इन 2 लम्हों में समझ गई कि अली क्या है, जो अली तकबीर देके जिंदा को मुर्दा कर सकता है, वो अली ठोकर मार के मुर्दा को जिंदा कर सकता है। मौला अली ने ठोकर मारी और कहा कुंबे इस्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। और वो लड़का कलमा पढ़ता हुआ जिंदा हो गया। मैं कहूँगी मौला अली, हमने कुरान में पढ़ा है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी मुर्दा को जिंदा करते थे, लेकिन वो कहा करते थे कुंबे इज़्नी अल्लाह, और आप कह रहे हैं कुंबे इज़्नी। ये नबूवत और इमामत के लफ्ज़ों में फ़र्क क्यों है? तो मौला अली कहेंगे कि जिस चीज़ पे जिसका हक होता है उसका नाम लाना ज़रूरी होता है, लेकिन जो चीज़ अपनी होती है उस पर नाम लाना ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगी और मौत का फैसला अल्लाह का है, इसलिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, लेकिन शब हिजरत को रसूलुल्लाह के बिस्तर पे सो के मैंने अल्लाह की मर्ज़ी को खरीद लिया है। कुंबे इज़्नी अल्लाह कहूँ या कुंबे इज़्नी कहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो वो अली हो गए जो इल्म में नबी के मुशाबे थे, लेकिन हमें करबो बला में एक और अली मिलते हैं जो सूरत और सीरत में नबी के मुशाबे थे। उनको हम लोग अली अकबर के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको 2 वाक़े सुनाती हूँ जिससे पता चलेगा कि इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब अली अकबर से कितना प्यार करते थे। एक दिन जब अली अकबर रात में झूले में सो रहे थे, तब रात की तारीकी में उम्मे लैला ने देखा कि कोई झूले पे सर झुकाए हुए है। तो उम्मे लैला ने कहा, उम्मे लैला घबरा गई और कहा कि कौन है जो मेरे बेटे के झूले पे ऐसे सर झुकाए हुए है। तो इमाम हुसैन की आवाज़ आई, उम्मे लैला थोड़ा धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ सुन के मेरा अकबर जाग जाए। तो उम्मे लैला ने कहा आका, उम्मे लैला ने कहा आका आप ऐसे सर झुकाए हुए क्यों बैठे हैं? तो इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। अब बीबी ज़ैनब के बारे में बताती हूँ कि वो अली अकबर को कितना चाहती थी। जहाँ भी जाती थी अली अकबर के पीछे पीछे जाती थी, कभी
अली अकबर को छोड़ती नहीं थी। एक दिन मौला अब्बास अली अकबर को जंग सिखा रहे थे। मौला अब्बास ने सबको जंग सिखाई है, कासिम को और मोहम्मद को, अपने छोटे भाइयों को। जनाब अली अकबर भी मौला अब्बास के शागिर्द थे। तो जब मौला अब्बास अली अकबर को जंग सिखा रहे थे, जब वो जंग की मश्क कर रहे थे, तो मौला अब्बास ने एक वार किया और वो जनाब अली अकबर के सीने पे लगा और बीबी ज़ैनब बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उन्होंने मौला अब्बास से कहा, ए अब्बास, कि तुमने क्या गजब कर दिया, अगर मेरे अकबर को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मैं कहूँगी, ए बीबी, जब अली अकबर को इतनी सी चोट लगी और आप इतना बर्दाश्त न कर सकी, तो जब अली अकबर का जनाजा आया तो आपने कैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप आज़ादारों, जब जनाब अली अकबर, जब जंग की इजाज़त उनको मिल गई, जब वो जंग पे गए तो उन्होंने बहुत शुजाअत से जंग लड़ी। आखिर मौला अब्बास के शागिर्द जो थे, लेकिन फिर एक जालिम ने उनके सीने पे बर्छी मार दी और उन्होंने बाबा को आवाज़ दी। इमाम हुसैन लड़खड़ाते हुए आए और कहा, अली अकबर, मुझे आवाज़ दो। अब्बास के मरने से मेरी कमर टूट गई थी, तुम्हारे मरने से मेरी आंखों की बीनाई चली गई है, मुझे आवाज़ दो, तुम कहाँ हो। इमाम हुसैन अली अकबर की आवाज़ सुनते सुनते अकबर के पास पहुँचे और कहा कि अली अकबर, तुमने अपने सीने पे हाथ क्यों रखा हुआ है। तो अली अकबर ने कहा, बर्छी लगी है सीने पे बाबा और उसकी हड्डी टूट गई है। अली अकबर ने इमाम हुसैन ने कहा, हाथ हटाओ। अली अकबर ने हाथ हटाया। इमाम हुसैन ने अपना एक हाथ करबला की जमीन पे रखा और दूसरा हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, नजफ की तरफ रुख किया और कहा, या अली अदरिकनी, और फिर बर्छी निकाली, सीने में बर्छी निकाली और जनाब अली अकबर का कलेजा भी निकल आया। जनाब अली अकबर तड़पते तड़पते वहीं शहीद हो गए। जब इमाम हुसैन ने जनाजे को उठाने की कोशिश की तो आए कैसे उठाते, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा कैसे उठाता। बीबी ज़ैनब आई और कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ भैया, आप अकेले अली अकबर का लाशा ना उठा पाएंगे। जनाजा पहने में गया, बीबी ज़ैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमारे तरफ से ये उस कुर्बानी को कबूल कर लिया। हाँ ज़ादारों, जब सबके सर नोके नेज़ा पे लगे थे ना, नोके नेज़ा पे थे ना, तो जब वो कूफे में दाखिल हुए, अली असगर का सर नोके नेज़ा पे बुलंद था और इतना नूरानी और इतना अच्छा उनका चेहरा था कि सब कूफे वाले देखकर हैरान रह गए। और फिर एक औरत ने कहा, खुदा करे जब ये जवान मरा हो तो इसकी माँ से ना रही हो, क्योंकि ऐसे हसीन